2025 में आगे क्या निज़ाम होगा, खरीदो फरोख्त जो है उसका क्या निज़ाम होगा और बैंकिंग जो है उसका क्या निज़ाम होगा। जैसे कि ये कई सालों से प्लानिंग कर रहे हैं कि 2025 में ग्रेट रीसेट किया जाएगा, उसमें तमाम चीज़ें जो हैं जिन्हें डिजिटल करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें पहले आप ये वीडियो क्लिप देखें, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी ताकि इस ज़माने में हम हर एक चीज़ को समझ सकें। इस वीडियो क्लिप को आप बड़ी गौर से देखें और समझें। Bank of America notifies customers of temporary industry-wide deposit delays। अमेरिका के अंदर लोग अभी तक अपनी सैलरीज नहीं निकलवा पाए हैं। उसकी रीज़न ये है कि बड़े बड़े जो बैंक्स हैं वहाँ पर डिपॉजिट डिलेज आ रहे हैं। ये डिपॉजिट डिलेज क्या होते हैं, ये क्यों हुए हैं, ये सब कुछ आपको बताने से पहले मैं ये तो अमेरिका के अंदर हो रहा है तो हम क्या करें, इसका हमारे से क्या लेना देना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई सब्र करो, दिस इज कमिंग वर्ल्ड वाइड। ये सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं होने वाला, ये पूरी दुनिया में होने वाला, जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। अब डिपॉजिट डिलेज क्या होते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनके अंडर जो है हजारों एम्प्लॉयज होते हैं, वो क्या करते हैं, बैंक्स को उनका एक अकाउंट होता है, उसमें वो डाल देते हैं पैसे और आगे बैंक का काम होता है कि इनके एम्प्लॉयज के बैंक अकाउंट्स के अंदर उनकी सैलरीज जो है डिपॉजिट की जाएं। तो बैंक की तरफ से डिले हुआ है, कंपनीज की तरफ से डिले नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत ही बड़ा फ्लॉ है और अगर आपको याद हो, मैं आपको बताता आ रहा हूं कि आगे फ्यूचर जो है बैंकिंग का वो बिल्कुल ऐसा नहीं है जो आज बैंकिंग हो रही है। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये कैसे मार्क ऑफ द बीस्ट को लीड करेगा, कैसे ये मुखालिफ मसीह की छाप को लीड करेगा और कैसे अब बैंक के पास ये राइट होगा कि वो अपनी मर्जी से आपके अकाउंट को ऑन ऑफ कर सके, आपके बैंक से पैसे काट सके आपकी मर्जी के बगैर। तो वो बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप जरा ये क्लिप देखें ताकि आपको सिचुएशन का अंदाजा हो सके, फिर उसके बाद बात करते हैं। Following some breaking news from Charlotte's banking industry, a processing issue at an industry vendor is delaying deposits to several major banks, including Bank of America and Wells Fargo. Federal Reserve officials are telling banks that an automated clearinghouse operator is dealing with file errors causing the slowdown. A clearinghouse is what banks use to make electronic transfers. Our partners at The Hill report other affected banks include Chase, US Bank, and PNC. Regulators are telling customers that their accounts and their personal information is all safe and they should contact their banker for more information. We did reach out to Wells Fargo executives and were directed to the clearinghouse. A spokesperson tells Queen City News TCH experienced a processing issue which impacted less than 1% of the daily volume in the US. TCH is working with financial institutions who have customers that have been impacted. Banks across the U.S. hit with deposit delays on what is payday for many Americans. According to the Federal Reserve, it was caused by an error at a payment processing network. Deposits that were authorized yesterday at 6 o'clock appeared to have the account and recipient information obscured, according to the Reserve. Customers at Bank of America, Chase, U.S. Bank, Truist, and Wells Fargo have all complained of issues. Banks reassured customers that their balances will be updated when those deposits are received, but do not have an estimate on timing. Payday for most people, but banks are warning customers all across the country your deposits could be delayed. Devon Ramin following the story tonight. What's causing this problem, Devon? Well, Lynn, the good news in all of this is that today's delay was not due to any sort of cyber attack or hack, but the Federal Reserve says human error is to blame. आपने नोट किया इसने क्या कहा है, इसने कहा है ह्यूमन एरर। आपने इस चीज को याद रखना है कि सारा इल्जाम ले दे के किस पे लगाया जा रहा है, ह्यूमन एरर के ऊपर, यानी कि ये इंसान की गलती है। Tonight, customers of some of the nation's largest banks, including Bank of America, Chase, and Wells Fargo, are wondering when they'll see their paychecks. Many woke up to notifications like this one, alerting customers of a glitch and temporary delay to direct deposits. The Federal Reserve issuing this alert to banks across the country, stating the delays were due to a processing issue at the Automated Clearinghouse, what many know as ACH. It's the processing system which allows banks to send electronic payments like direct deposits and payments for online bills. Notices to customers at impacted banks stressed that deposits remain safe and the money will show up eventually. तो आपके सामने है
कि सारा इल्ज़ाम ले दे के करते कि खुद हैं, लेकिन इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाया जा रहा है कि जी एक इंसान की गलती की वजह से जो है वो ये सब कुछ हुआ है, तो हम इसको फिक्स कर लेंगे। तो ऐसा पहले भी तो होता रहा, लोगों को लगेगा कि यार कोई नहीं, छोटा सा ग्लिच आया है, अभी कुछ देर तक जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ठीक हो भी जाएगा। लेकिन मसला पता क्या है आपको, ये कर रहे हैं माइंड प्रोग्रामिंग। एक वक्त आएगा जब आप कहेंगे कि ग्लिच आया होगा, अभी ठीक हो जाएगा, तब ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं ठीक होगा? क्योंकि यही इनका प्लान है। मुखालिफ मसीह के बारे में खुदा के कलाम में लिखा है कि जब वो आएगा अपनी छाप हर अमीर गरीब छोटे बड़े के ऊपर करवाएगा, उसकी छाप के बगैर कोई भी खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। यानी कि खरीदो फरोख्त किससे की जाती है? मीडियम से, एक ऐसे मीडियम से जिसको पैसा कहा जाता है, या कोई धातें या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप खरीदो फरोख्त कर सकें। उसमें ज़्यादातर यूज़ होने वाली चीज़ मनी है, पैसा है। तो पैसे ही जब आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, कैश आपको पता है ये टोटली ख़त्म करने वाले हैं, डिजिटल करना चाह रहे हैं, तो तब आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। आप इसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे कि बैंक के अंदर आपके वो डिजिट्स आएंगे, तो तभी आप बाय और सेल कर सकेंगे। तो मैं आपको पिछले कई सालों से बताता आ रहा हूं कि बैंक्स क्या करने वाले हैं। इनके पास ये राइट आ चुका है कि ये आपका अकाउंट किसी भी वक्त बंद कर सकते हैं, किसी भी वक्त उसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, जस्ट विद अ पुश ऑफ अ बटन। अब आप खुद सोचें, वो इंसान जो कि पे चेक टू पे चेक रहता है, जिसका गुजारा ही चलता है, जो हैंड टू माउथ है, हमारे जैसे काफ़ी सारे लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो हैंड टू माउथ हैं इस वक्त। जैसे महीना ख़त्म होने वाला होता है, पैसे ख़त्म हो चुके होते हैं महीना ख़त्म होने से पहले ही, और लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से पकड़ के अपने गुजारे कर रहे होते हैं कि भाई पे आएगी तो मैं दे दूंगा। लेकिन आप इमेजिन करके देखें, अगर एक कोई ऐसा महीना आ जाए जब पे ही ना आए, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके पास ना तो कोई सेविंग है, ना उनके घर में कोई इतनी वैल्यूएबल चीज है जिसको वो बेच के तो अपना गुजारा कर सकें। और इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेजॉरिटी जो है उसके यही हालात है, हैंड टू माउथ हुए हुए। अब इन्होंने ह्यूमन एरर के ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाया, तो इसके बारे में मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूं कि आगे फ्यूचर में जो हमारी नौकरियां हैं वो कौन ले लेंगे? रोबोट्स ले लेंगे। और इंसानों को क्या किया जाएगा? फारिग कर दिया जाएगा, जॉब से निकाल दिया जाएगा। अभी आपको शायद ये चीज़ शायद आपके सामने ना आई हो, अभी खामोशी से बैंक्स अपनी जो एम्प्लॉयमेंट है उसको कम करते जा रहे हैं। यानी कि उनके जो मुलाजमीन हैं उनको चुपके से निकालते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कम करते जा रहे हैं। आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं, बिग बैंक्स आर क्वाइटली कटिंग थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड मोर ले ऑफ्स आर कमिंग। यानी कि इनका प्लान ये नहीं है कि बस हमने इतने से ख़त्म करने थे, हमने निकालने थे, उतने से हमने निकाल दिए। जी नहीं, अभी और इन्होंने निकालने हैं। सिर्फ अमेरिका के अंदर 5 बड़े बैंक्स ने टोटल अगर कंबाइंड उनकी बात की जाए तो 20,000 जो लोग हैं उनको निकाल दिया हुआ है। ये मैं इस साल 2023 की बात कर रहा हूं, और आगे मजीद ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी एम्प्लॉयमेंट जो है उसको कम करते जाएंगे। जिसका मेन रीजन क्या है? इंसानों को निकाल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, रोबोट्स को उनकी जगह दे देनी है। आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं द फ्यूचर ऑफ एआई इन बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाना। और मैं आपको पहले भी ये डायग्राम दिखा चुका हूं, शायद आपने ये देखी हो, आपको याद हो। मैंने आपको बताया था कि सीबीडीसी जो है, जो ये डिजिटल करेंसी लॉन्च करना चाह रहे हैं सारे के सारे बैंक्स, उसमें होगा क्या, अभी प्रेजेंटली क्या होता है और आगे फ्यूचर में क्या होगा। तो अभी ये होता है कि सेंट्रल बैंक होता है एक पूरे मुल्क का, उसके बाद अमेरिका की एग्जाम्पल में फेडरल रिजर्व बैंक है, इसी तरह हमारी एग्जाम्पल में स्टेट बैंक होते हैं, उसको सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है। तो सेंट्रल बैंक के बाद क्या आता है जी, वहाँ से निकलते हैं, प्रिंट होते हैं पैसे, वो पैसे निकल कर कहाँ जाते हैं? बैंकों में जाते हैं। और बैंक क्या करते हैं? वो आगे अपने प्रोमिसेस करते हैं कस्टमर्स के साथ कि भाई हम आपको इतना मुनाफा देंगे अगर आप हमारे बैंक में डिपॉजिट करके रखेंगे, अगर आप हमारे बैंक को इस्तेमाल करते हैं, ज्वाइन करते हैं, अकाउंट खोलते हैं, तो आपको यहाँ पर बड़े बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि आपको जी फ्री की जो ट्रांजैक्शन मिलेगी, या ATM कार्ड फ्री का मिल जाएगा। इस तरह की चीज़ें करके ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं छोटे छोटे बैंक्स जो होते हैं। और फिर क्या होता है? एंड यूज़र हम होते हैं जिनके पास ये पैसा आता है, चाहे वो सैलरी के जरिए आए, चाहे हमारे बिजनेस से आए, किसी भी तरीके से जो पैसा आता है बैंक के थ्रू वो हम तक पहुंचता है। ये वो प्रोसीजर आज चल रहा है, लेकिन आगे ये नहीं चलने वाला जब CBDCs लॉन्च हो जाएंगी। तो फ्यूचर में क्या होगा? पूरे मुल्क का एक ही बैंक होगा, और नीचे आप देख सकते हैं डायरेक्ट हो जाएगा। ये जो सेंट्रल बैंक है ये CBDCs के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, आप कह सकते हैं आपके मोबाइल फोन के जरिए, स्मार्टफोन के जरिए, ये आपसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा सेंट्रल बैंक। बीच में से क्या क्या निकल गया? छोटे बैंक्स निकल गए और कस्टमर सर्विसेज सारी की सारी निकल गई। यानी कि आपके पास कोई ऑफिस ही नहीं होगा। अगर आपका कोई ग्लिच आता है, अगर आपके पैसे उड़ जाते हैं, अगर आपके बैंक से कोई हैक कर लेता है, तो आप क्लेम ही नहीं कर सकते। आप लगे रहेंगे वो
चैटबॉट के साथ बात करते रहेंगे कि भाई मेरे पैसे कहाँ गए, वो आपको तसल्लियाँ या तो देती रहेगी या वो कहेगी कोई ग्लिच आ गया है। वो भी इंसान नहीं होगा जिससे आप चैट कर रहे होंगे। तो बताने का मकसद ये है, ये जितनी नकली दुनिया बनाते जा रहे हैं, डिजिटल दुनिया, वो हमारे हक में है ही नहीं। देखें जी, कम से कम अगर छोटा बैंक होता है तो हम वहाँ पर जाकर बात कर सकते हैं, कोई मसला है उसको इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अब जब आप सेंट्रल बैंक से डायरेक्ट हो जाएंगे तो आपका मसला जो है सुना ही नहीं जाएगा, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर करोड़ों लोग होते हैं। सो दिस इज वेयर वी आर गोइंग। और इसको करने का इनका मकसद क्या है, ये बीच में से छोटे बैंक्स क्यों निकालना चाहते हैं, कस्टमर सर्विसेज क्यों निकालना चाहते हैं, तो उसकी मेन रीजन ही ये है कि आप किसी के पास जा ही ना सकें। एग्जाम्पल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब का एक भी ऑफिस नहीं है, यानी कि अगर आपकी वीडियो डिलीट कर दी जाती है, आपका चैनल डिलीट कर दिया जाता है, तो कोई ऑफिस नहीं है जहां पर जाकर आप उनसे बात करें कि भाई क्यों डिलीट किया गया। हम तो भाई कम्युनिटी गाइडलाइंस को भी फॉलो कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, तो क्यों डिलीट किया गया। तो क्योंकि मुल्क के अंदर ऑफिस ही नहीं है, आप सवाल किससे करेंगे। तो इसी तरह से सेम चीज होने वाली है बैंक्स के साथ। जब छोटे छोटे बैंक्स होंगे ही नहीं, कस्टमर सर्विसेज वाले होंगे ही नहीं, तो आप किससे बात करेंगे। सो दिस इज द रीजन जिसकी वजह से मैं आपसे कह रहा था कि ये सारी की सारी चीज सिर्फ अमेरिका में नहीं हो रही है, वर्ल्ड वाइड होने वाली है, पूरी दुनिया में होने वाली है। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के बैंक्स सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनाते जा रहे हैं। CBDCs के ऊपर काम चल रहा है, जो कि 2025 के अंदर इन्होंने लॉन्च कर देनी है। 2025 के बाद जो बैंकिंग आज हो रही है वो 2025 के बाद नहीं होगी। अब बैंक के पास ये जो अथॉरिटी आ जाएगी ना कि वो अपनी मर्जी से किसी का भी अकाउंट ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये सारा का सारा हमें शैडो दिखा रहा है कि मुखालफे मसीह के दौर में क्या होगा। यानी कि कोई भी उसकी मर्जी के बगैर, जिसके पास छाप नहीं होगी, वो उसके बगैर खरीदो फरोख्त ही नहीं कर सकेगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आज से पहले ये मुमकिन ही नहीं था जो आज हो रहा है टेक्नोलॉजी के ज़रिए, डिजिटलाइजेशन के ज़रिए। ये मुखालफे मसीह की छाप वाला काम पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन आज हमारी आंखों के सामने सब कुछ जो है वो पर्दा हटता जा रहा है, हर एक चीज़ साफ साफ दिखाई देना शुरू हो गई है। तो आज की वीडियो से आपको यही बताना चाहता था, खबरदार करना चाहता था कि वक्त बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है। जिस तरह का वक्त चल रहा है इसमें हमें अपने ईमान के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करना चाहिए जो कि खुदा के साथ है। अगर आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं तो वेरी गुड, अगर आप यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं तो आपके पास मौका है, अभी वक्त है कि आप उसके बारे में जानें कि वो ही निजात दहिंदा क्यों है, उसके अलावा निजात क्यों नहीं है, वो कब आने वाला है, उसके आने की निशानियां क्या होंगी, ये सारी बातें जानें। क्योंकि अभी आपके पास इंटरनेट मौजूद है, अभी आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं। जब वक्त हाथ से निकल जाएगा, जब बैन कर दिया जाएगा बाइबल को, तो फिर आपको कोई भी बताने वाला नहीं होगा। जी, तो मेरे अजीजों, आपने इस वीडियो क्लिप में देखा है कि किस तरह 2025 में इनकी जो प्लानिंग है कि बैंकिंग निज़ाम को बदला जाएगा, कैशलेस सोसाइटी जो है वो बनाई जाएगी, डिजिटल पूरी दुनिया को करने की कोशिश की जा रही है। और नौकरियां जो है, ख़ास करके इंसान जहां पे जॉब्स करते हैं, जो काम इंसान करते हैं, उनकी जगह पर रोबोट्स काम किया करेंगे। ये सारी इनके पीछे प्लानिंग है। और ये सारा कॉन्सेप्ट किस तरफ जा रहा है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ। और इनका जो प्लान था, इनका जो मंसूबा था कि किस तरह 2025 तक इसको पूरी दुनिया में लागू किया जाएगा। अभी अभी ये सारे ट्रेलर्स हैं, पूरी पिक्चर जो है ये 2025 तक हो सकता है कि इसको फुलफिल कर दे। तो मेरे अजीजों, इस तरह की इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे।